Hello and welcome back to the channel. So in today's class, we'll read about Article 353 of the Indian Constitution. 353 of the Indian Constitution, it basically talks about the effect of proclamation of national emergency. Okay, before we start, let's think about, have you ever wondered what happened when India faced a war, external attack, or an armed rebellion? Does the central government become more powerful? Can it give direction to state? Can parliament make law on state subjects? So all these answers, it lies in Article 353 of our Indian Constitution. So today I'll explain 353 in the simplest way possible with the examples and the constitutional provisions, and all the case laws I'll deal in a separate class. So let's explore the background of 353 uh, of the emergency provision of our Indian Constitution. It comes into operation only when a national emergency under 352 is in force. So in the last class हमने 352 पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी कब इम्पोज होती है और कैसे इम्पोज होती है। ठीक है, तो जब 352 में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, तो फिर 353 में हमें पता चलता है कि क्या होगा जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, कैसे होगी, क्या उसका इफेक्ट होगा, वो हम 353 में पढ़ते हैं। ओके, so 353 explain how the constitutional distribution of power change once an national emergency has been proclaimed under 352. ठीक है, तो 352 क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 353 क्या है? क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उस इमरजेंसी के ऑन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, if this constitutional distribution of power means the distribution of the power between the executive and the legislative, तो जब इमरजेंसी होती है तो वो चेंज हो जाता है, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, दैट विल डील इन 353. Suppose India is attacked by another country. A national emergency has already been declared in 352. So, does the declaration of emergency itself give the central government the additional power? So, the answer is yes. Okay. So, which article actually give those additional power? That is 352. 352 only declares the emergency. 353 only and 353 tells us what happened after that emergency is declared. So normally India जो है वो फेडरल सिस्टम है, ठीक है। यूनियन के खुद के पावर है, यूनियन के पास स्टेट गवर्नमेंट के खुद के पावर है उनके पास। लेकिन जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो 353 जो है वो अलाउ करता है हमारी यूनियन गवर्नमेंट को, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर उस टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट के पास हो जाती है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट बिकम मोर सॉरी the union government become more powerful, and they deal effectively with the crisis. Okay, so 353 provides that during a national emergency जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है किसी यूनियन का, वो एक्सटेंड हो जाता है टू गिव डायरेक्शन टू एनी स्टेट। इट मीन्स दैट जो यूनियन के पावर है वो जनरली स्टेट के खुद के पावर होते हैं और यूनियन के पावर होते हैं, नो वन कैन इंटरफेयर विद इन दैट। बट इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव जो यूनियन है हमारा, वो स्टेट को उस टाइम पे डायरेक्शन दे सकता है, एंड जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर हो जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर में अपने लॉज को बना सकता है। Talking about the important points, so 353 does not declare the emergency. Again, I'm saying 353 does not declare emergency. It only explains the consequences of the declaration, which is made under 352. 352 pressing, it's a pressing button of our emergency, whereas 353 is the emergency power that become available after that pressing the button. So if we'll
Read the text of 353. So it provides that while a proclamation of emergency is in operation, the first, the executive power of union extend to giving direction to any state regarding how it should exercise its executive power. Second, the parliament gets the power to make law on any subject in the state list. Means पार्लियामेंट के पास पावर हो जाता है कि वो स्टेट लिस्ट में भी लॉज बना सकती है. अदरवाइज इन जनरल सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में ही बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाती है. Let's break the Article 353 in two parts. Two major effects. First, executive power of union expand. That is A. Okay, जो सेंट्रल नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर नहीं करती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में स्टेट के. स्टेट अपनी ऑटोनॉमी खुद एंजॉय करता है. फॉर एग्जांपल, दिल्ली कैन नॉट टेल पंजाब हाउ टू रन इट्स स्कूल. ठीक है, या फिर दिल्ली इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती केरला को किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. बट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है. जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो एक बाइंडिंग डायरेक्शन इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट पे रिगार्डिंग द मैटर विच इज़ नेसेसरी टू डील विद द इमरजेंसी. सो टू डील विद दैट इमरजेंसी उस टाइम पे जो नेसेसरी लगता है यूनियन गवर्नमेंट को वो वैसे बाइंडिंग डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को देती है. ठीक है, स्टेट जो है आर और स्टेट उस टाइम पे उन्हें कंप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी. ठीक है, अगेन सपोज लेट्स टेक अ एग्जांपल दैट इंडिया इज एट वॉर. So the central government directs all the border states to close certain roads, to evacuate the village, to restrict the transportation, to establish the relief camp, to deploy the additional police. And the state cannot refuse that because it is an emergency circumstances. Because 353 expands the executive power of the union. And let's if we'll talk about the part 2 where the parliament can legislate on the state subject. So normally, as I told you, the constitution divides the legislative power into three lists. ठीक है, तीन लिस्ट में डिवाइडेड है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट. यूनियन में पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ बनाती है. बट टॉकिंग अबाउट द कंकरेंट लिस्ट वेयर बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट हैज अ पावर. ठीक है, वहाँ पे दोनों ही बना सकते हैं. सो नॉर्मली पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में लॉ नहीं बनाती है, वो लेजिस्लेट नहीं करती है एक्सेप्ट इन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन. ठीक है, लेकिन अगेन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो 353 है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि वो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में अगर इमरजेंसी के टाइम में वो नेसेसरी होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा. तो 353 के अंदर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकती है. Again, example of stateless subject. So some important stateless subject, it include the police, public order, agriculture, public health, land, prison, etc. So normally state legislature in matters में law बनाती है, पर नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट के पास वो पावर हो आ जाता है, पार्लियामेंट उस पावर को एक्वायर कर लेती है. ठीक है, अगेन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज अ वॉर इफेक्ट बॉर्डर स्टेट. ठीक है, वॉर की वजह से जो बॉर्डर स्टेट है उन पे इफेक्ट आया है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक यूनिफॉर्म लॉ डिसाइड करेगी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पुलिस कोऑर्डिनेशन या फिर सप्लाई, फूड सप्लाई के लिए, एवैक्यूएशन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. सो नॉर्मली ये सारे स्टेट लिस्ट के मैटर है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है ना तो उस टाइम पे पार्लियामेंट 353 के अंदर इन मैटर्स पे जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं उनमें पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है. क्यों 353 इंक्लूड किया गया कि इमेजिन करो हर स्टेट अपने डिफरेंट रूल बना रहा है वॉर के टाइम में. ठीक है, one state allow movement, another closes road, another follow a different evacuation policy. तो यहाँ पे बहुत रखस हो जाएगा, बहुत confusion create हो जाएगा. इसीलिए जो 353 है वो इंश्योर करता है कि एक नेशनल कोऑर्डिनेशन बना रहे ड्यूरिंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन. ठीक है, फेडरलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका. नॉर्मली इंडिया फेडरल कंट्री है, इमरजेंसी के टाइम में क्वाजी यूनिटरी कैरेक्टर आ जाता है. ठीक है, स्टेट कंटिन्यू
to exist, but the union power becomes stronger, significantly stronger. स्टेट होता है, एग्जिस्ट करता है, पर जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, उसका पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इसी वजह से जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है इन नॉर्मल टाइम्स, बट it has the capacity of becoming unitary during the emergency. Okay, now can parliament permanently keep this power? No, these powers are temporary. जब emergency end करेगी ना, तो वापस से सब normal हो जाएगा। पार्लियामेंट फिर अपने लॉज यूनियन लिस्ट में लॉ बनाएगी, वो स्टेट के मैटर में फिर उस टाइम पे इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, पार्लियामेंट स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर ओवर द स्टेट लिस्ट अंडर 353 एंड्स। ओके, जो ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एज आई टोल्ड यू कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में बनाएगी, हमारी स्टेट स्टेट लिस्ट में बनाएगी। वो ऑर्डिनरी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी और नॉर्मल सारी चीजें जैसे पहले चलती थी वैसे चलेंगी। ठीक है, what happened to laws made during the emergency? If parliament make a law on the state list during the emergency, does it automatically ends, it become invalid when the emergency ends? So no, अंडर 357 आर्टिकल 357, हम ये बाद में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है जनरली कि वो जो लॉ इमरजेंसी के टाइम पे जो लॉ पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट में बनाई है ना, वो इनफोर्स में रहेगी इवन आफ्टर द इमरजेंसी एंड स्टिल दे आर रिपीट ऑल्टर्ड अमेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर। ठीक है, मतलब कि वो जो लॉ इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट ने बनाया था इन द स्टेट लिस्ट, वो वैलिड रहेगा, वो इन फोर्स में रहेगा। इवन इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तब भी वो फोर्स में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उसको जो स्टेट के लेजिस्लेचर है, जो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर है, वो उसको रिपील कर दे, या तो उसको ऑल्टर कर दे या फिर अमेंड कर दे। हाउएवर द पार्लियामेंट्स पावर टू मेक अ न्यू लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट अंडर 353 सीजर्स वन देम, लेकिन जो पावर है वो सीज कर जाएगा। इमरजेंसी एंड करते ही पार्लियामेंट का पावर जो है 353 में स्टेट लिस्ट के मैटर में लॉ बनाने का, लेजिस्लेट करने का, वो एंड हो जाता है। लेकिन जो लॉ उन्होंने बनाया है वो फोर्स में रहेगा अगर कोई कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर उसको रिपील ना कर दे, ऑल्टर ना कर दे या अमेंड ना कर दे। ठीक है, हमने 352 पढ़ा था, वहां पे इमरजेंसी सिर्फ डिक्लेयर की जाती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम 353 में देखते हैं। 352 में जनरली जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होता है टू प्रोक्लेम द इमरजेंसी, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था 352 में कि प्रेसिडेंट तब तक इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकता जब तक उसको यूनियन कैबिनेट से इन रिटन ना मिल जाए। ठीक है, और वो कब आया था? 44th अमेंडमेंट में आया था, जहाँ की 353 की अगर हम बात करें तो ये यूनियन के एग्जीक्यूटिव और यूनियन के लेजिस्लेटिव पावर को और भी एक्सपैंड करता है। जो हमने दो पार्ट में ब्रेक करके देखा ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, कि कैसे जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके पावर बढ़ जाते हैं, कैसे लेजिस्लेटिव जो यूनियन लेजिस्लेटिव है वो और पावरफुल हो जाती है। ठीक है, so important constitutional amendment, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जो ये जो अमेंडमेंट है ये क्लैरिफाई करता है कि जब जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, इन ओनली दैट व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर ओनली इन रिस्पेक्ट और पार्ट ऑफ इंडिया, द यूनियन पावर अंडर 353 extend even to state where the emergency is not in force, if such extension is necessary because the security of India or any part of its territory is threatened. जो केस लॉज है वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे सेपरेटली। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल व्हाट 353 इज। ठीक है, so we'll in next class we'll deal with 354 and 355.